السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جو بات آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا ہوں وہ مجھے صحیح طریقے سے بولنے کی، سمجھانے کی، پھر ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج میں آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آئے سو نبی، رسول بھی انہوں، حضرت صالح علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے۔ یہ ہمیں آلریڈی قوم عاد کے بارے میں ہمارا بیان ہو چکا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود، یہ دو قوم بہت طاقتور قوم یہ لگا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قوم عاد اور قوم سمود بہت طاقتور ہے گو بول کو بنایا سنی چھے اللہ چھے وہ قوم کو بنایا سو اللہ چھ بولتا ہے کہ تو سوچو وہ لگا ابھی کتنا طاقتور ہو کو رہتے کی، وہ لگا سی پہلے کون بھی وہ لگا کہ طاقتور کون بھی پیدا نہیں ہے، نہ ان لوگوں کے بعد کوئی ان جیسا طاقتور لوگ پیدا ہوں گے۔ وہ لگا سی پہلے بھی کون بھی نہیں ہوتا طاقتور لوگ، یہ لگا کہ بعد بھی کون بھی ہوتا طاقتور لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ وہ لگا اتنے طاقتور قوم، وہ لگا قوم عاد، قوم سمود، وہ لگا بہت اونچے اونچے رہتے سو، معمول اونچے نہیں، وہ لگا بہت اونچے رہتے سو، لگا تقریباً 130 پر 5 فیٹ ہے یا 130 فیٹ ہے، وہ لگا رہتے سو، اونچا پن ہے، بہت طاقتور لوگ وہ لگا۔ قوم عاد ہود علیہ السلام دعوت دیے تو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر عذاب بھیجا۔ 7 رات 8 دن تیز ہواؤں کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے اللہ لگا کو تباہ و برباد کر ڈالا قوم عاد کو۔ اور اس کے بعد یہ لوگوں کا انجام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لوگ ان لوگوں کو دیکھتے نا جب طوفان ختم ہو گیا، ایسا لگتا کہ کھجوروں کی تنے اکھڑ کو گر گئے نہ دے، کون کی اکھاڑ کو کھینچ کو نکال کو گرا ڈالے نہ دے، وہ لگا رہتے سو کو بولے اللہ تعالیٰ کیسے کیا، وہ لگا اتنے طاقتور لوگ ہے لیکن ہم نہ گھٹو ہوا آیا کر لو جھاڑا سی پھلا کیسا گر جاتے ویسا وہ لگا گر جا کو پڑ جا کو ہے، وہ لگا مر جا کو، اتنا بڑے طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ ویسا تباہ و برباد کر ڈالا۔ اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہے اور ان کے اوپر کون ہے تو چند لوگ ایمان لائے کی، وہ لگا کو بچ کو نکل گئے، وہ لگا نکل کو کہاں آباد ہوئے، سامنے ہجر کے علاقے میں آباد ہوئے، وہاں کے یہ سمود کہتے سو قوم حیوا۔ اب ان کے بعد ہود علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کری یہ قوم۔ اب یہ قوم کو قوم سمود بولتے، یہ لگا کو یہ قوم سمود کی ہو، یہ قوم سمود کیا کرتے سو گے تو
पहाड़ा है ना, पहाड़ा को तराश को, पहाड़ा को चिक्कू को तराश को, पहाड़ा को उसमें घरा बनाते सो लगा। ये लगा कने अल्लाह, ये लगा को उतना इल्म दिया, ताकत भी बहुत दिया, इल्म भी देखो कैसा इल्म दिया कि कैसा टेक्नोलॉजी की देखो। असल पहाड़ा को तराश को घर बनाना के तो बात आ, ये लगा पहाड़ा में बड़े बड़े घरा बनाते से लगा कौम समूद। ये लगा भी आहिस्ता 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 अल्लाह की नाफरमानी शुरू करे, अल्लाह को छोड़ वाले, अल्लाह की इबादत छोड़ वाले, बुतों की पूजा शुरू करे, अपनी हाथों से मूर्तियों को बना को, वो लगा अपने हाथों से पत्थरों का बुत्ता को बना को, ये लगा वो लगा की पूजा शुरू कर डाले लगा। अब ये लगा के वास्ते अल्लाह ताला हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना को, रसूल बना को भेजा लगा की तरफ है। ये लगा कहा है कब तो, ये लगा है सो इलाका सिटी कौन सा गए तो हिज्र, अल हिज्र, ये सिटी नॉर्थ वेस्टर्न सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ है ये अल हिज्र का सिटी। वो सिटी में एक कौम समूद है, आबाद है, ये लगा वहां रहते से लगा अल हिज्र। कुरान मजीद में हिज्र बोल के एक सूरत है, एक सूरत ही चुता रहे अल्लाह ताला, एक सूरत का नाम ही छोड़ा क्या अल हिज्र को। अब ये लगा की तरफ है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा अल्लाह ताला, पैगंबर बना को, रसूल बना को, इना को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है वो कौम के वाले छे, उसमें रहते सो एक बुजुर्ग नेक आदमी, इनो बुतों की पूजा नहीं करते सो, इनो गुनाहों से पाक रहते सो, नेक बुजुर्ग इनो, और अच्छा समझदार इनो, बहुत इंटेलिजेंट इनो। इना की कौम में सी छे चुने अल्लाह ताला पैगंबर को, रसूल को, सुना को चुना को अल्लाह ताला हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ ये लगा को दिन की दावत दियो, सीधा रास्ते पहले लेकर आओ बोल को। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, आओ अपनी कौम को दिन की दावत शुरू करे। ये मेरी कौम, तुम लगा कहीं को ये बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बना को, तुम्हें अल्लाह की इबादत करो, ये एक अल्लाह की इबादत करो। तो हमना लगा को तुम ना सबको अल्लाह ताला पैदा करे सो, हमना लगा को ये जमीन को आबाद करे सो भी वो अल्लाह छे, हमें उसकी इबादत करना, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके साथ किसी को भी शरीक मत करो वो बोल को समझाते रहे। जब कौम में जवाब में क्या कहती है मालूम, ए सालेह तू तो इससे पहले हमारे दरमियान एक बड़ा होदा था सो तेरे कने, तो क्या वो लगा के अंदर है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के एक बड़ा होदा रहता सो, वो लगा ये बोलते हैं इससे पहले तो हमारे कौम के अंदर है तुझे एक अच्छा बड़ा होदा देते सो, हमें तू अच्छा समझदार समझते सो, हमें तू नेक को समझते सो, तू देखे तो अब देखे तो हमने ऐसा बात बोलता है अल्लाह की इबादत करो, ये बुतों को छोड़ रहा लोगों को, ये बुतों की इबादत तो हमारे बाप दादा करते आए, हमें वो रस्म करते हैं, आज हमारे बाप दादा लगा करे सो रस्म करते हैं, हमें ये इसे रोको को बोल को तू बोलता है को बोल को बोलते है लगा एक में। फिर सालेह अलैहिस्सलाम समझाते अल्लाह ताला मुझे हिदायत दिया, मुझे पैगंबर बनाया, पैगंबर रसूल बना को तुम्हारी तरफ भेजा अल्लाह ताला, समझो मेरी बात को गौर करो, तुम्हें ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के साथ शिरक मत करो, अगर तुम ऐसा करेगे तो अल्लाह तुमने तबाह बर्बाद कर डालता। तुम्हारी सी पहले कौमों को देखो एक बार, ये लगा कि नस्ल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, ये लगा कि नूह अलैहिस्सलाम के खानदान में से ये लगा कि नस्ल आई, कौम आद कौम समूद दो भी नूह अलैहिस्सलाम की खानदान में से आई, नस्ल में से आई। सो ये लगा बोलते हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को देखो एक बार, तुम्हारे परदादा के दादा उना की कौम को कैसा अल्लाह तबाह बर्बाद कर डाला समुद्र में। अच्छा तुम्हारे से पहले देखो, तो दूर भी नको, तुम्हारे से पहले कौम आद है, तुम्हारे से पहले ऐसा कौम आद को अल्लाह कैसा तबाह बर्बाद कर डाला, 7 रात 8 दिन तेज हवा चला को तबाह बर्बाद कर डाला कौम आद को। समझो तुम्हारे ऊपर भी ऐसा अजाब आता अल्लाह की नाफरमानी करे तो वो बोल को समझाते रहे। वो लगा क्या बोलते रहे मालूम, कौम आद तो हमारी सी कमजोर है, हमें वो लगा सी ताकतवर है, तो बोल को बोलते रहे लगा, बोल को हमें तुम्हारी बात नहीं मानते, जाओ तुम्हें ऐसी असले को बोल को बोलते। बाद में सालेह अलैहिस्सलाम ऐसा दिन की दावत देते रहते, बहुत कम लोग हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाते, बहुत कम लोग हैं सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए।
जब सालेह अलैहिस्सलाम भी और उनके ऊपर ईमान लाए से थोड़े लोग का तो आते हैं तो किधर से तो जाते हैं तो ये कौम के सामने हुए तो नाफरमाना के सामने हुए तो लगा कहते सो क्या को तुम्हें लगा हमारे दरमियान रहना ना को हमारे बीच में रहना ना को तुम्हें लगा तुम्हारा नहुसत की वजह से हमारे ऊपर है हम ना प्रॉब्लम्स आते हैं परेशानी आते हैं हम ना मुसीबत आते हैं को बोले नहुसत के तो दलिंद्रागीति हमारी बात में समझाने दलिंद्रागीति को बोलते नहुसत को तुम्हारा नहुसत की वजह से हम ना मुसीबत आते हैं परेशानी आते हैं हमारे ऊपर को बोलते हो लगा जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बोले ये हमारा नहुसत नहीं है हमारी दलिंद्रागीति नहीं तुम्हारी दलिंद्रागीति चाहिए अल्लाह की तरफ से तुम ना लगा कि अजाब है ये तुम्हारी नहुसत है हमारी नहुसत नहीं तुम्हें कर ले हाथासी है नहुसत है दलिंद्रागीति तुम्हें हाथासी कर ले ये अल्लाह की तरफ से तुम ना हाथा से एक अजाब है वो बोलते हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बोलते फिर को समझाते मेरी बात समझो गौर करो मेरी बात है मैं क्या बोलता हूँ उसके ऊपर जरा गौर करो जी मैं सही बोलता हूँ गलत बोलता हूँ कि एक बार जरा सोचो सोच समझ को फैसला करो वो बोलते नहीं वो कौम नहीं मानती फिर भी ऐसा जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम में दावत देते रहते ये कौम मानती नहीं अच्छा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को एक दिन एक कौम बोलती तुम्हें को तो एक निशानी ले रखा है तो एक मौजिजा ले रखा है तो हमें तुम्हारे ऊपर ईमान लाते को बोलती है कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पहले इनकार करते कहीं को इनकार करते कहे तो जब भी अल्लाह 100% है मेरा दिल सच्चा को उन्हें 100% प्रूफ है 100% प्रूफ बता डाला कर लो दलील बता डाला कर लो उसके बाद कौम ईमान नहीं लाए कर लो सबको तबाह बर्बाद कर रहा होता अल्लाह ताला जर्रा माने भी गैप नहीं देता टाइम नहीं देता वक्त नहीं देता अल्लाह ताला जब निशानी बता डाले तो होने से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नहीं बोले इनकार कर डाले ये लगा मुतालबा करे तो हमने निशानी बताओ बोले तो फौरन इनकार कर डाले नको बोलते सालेह अलैहिस्सलाम मेरी बात समझो मेरी बातों में गौर करो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर निशानी आ गई कहे तो तुम्हें लगा ईमान नहीं लाए तो तुम ना सोचने का मोहलत नहीं रहता समझने का मोहलत नहीं रहता तुम ना लगा को अब तो टाइम है तुम्हारे पास अभी वक्त है सोचो समझो मेरी बात के ऊपर गौर करो तुम्हें लेकिन जब मैं तुम्हें बोले से निशानी लेने का कर लो उस वक्त तुमने अल्लाह ताला मोहलत नहीं देता फौरन तुमने तबाह बर्बाद कर डालता मैं वो नहीं चाहता हूं तुम्हारे ऊपर फौरन अजाब आना को बोल को मैं चाहता हूं नहीं होने से तुम्हें समझो मेरी बात को समझो और इसके ऊपर गौर करो मेरी बातों के ऊपर गौर करो एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ तुम्हें ये बुतों की इबादत करना छोड़ डालो तुम्हें को बोल को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम समझाते रहे अभी तुम्हारे पास टाइम है वक्त है मोहलत है तुम्हें ये मोहलत में ये टाइम में वक्त में सोचो जी एक बार मैं निशानी लेने का कहते तो अभी तुमने सोचने का टाइम रहता नहीं मोहलत नहीं रहता मेरी बात मानो को बोलते लेकिन वो कौम नहीं मानती हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात बिलाखिर एक दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अच्छा बोलो क्या निशानी ले लेकर आना बोलो को पूछते हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वो कौम बोलती ये के खुला मैदान में चटियल मैदान के तो खुला मैदान है खुला मैदान में वो पहाड़ है ना बहुत बड़ा पहाड़ है वो पहाड़ में से ऊंटनी आना को बोलते हैं देखो असल लिंक क्या तो है पहाड़ को ऊंटनी को असल क्या तो भी जर्रा तो भी लिंक है जी जर्रा भी लिंक नहीं लेकिन पहाड़ में से ऊंटनी लेगा ना कहते देखो ये लगा कि बात देखो कैसे बोलते हैं कि लगा असल लिंकेज नहीं है पहाड़ को ऊंटनी को लिंकेज नहीं वो लगा बोलते हैं उतना बड़ा पहाड़ में से ऊंटनी आना को बोलो ये लगा का बात है ये ले लेकर ये करो जब हमें तुम ना मानते तुम्हें रसूल को बोल को अल्लाह के नबी को बोल को पैगंबर को मानते को बोल को बोलते हैं लगा हमें जब तक का हमें तुम ना मानते नहीं तो बोल को बोलते और एक बात भी बोलते या इतना ये पूरी कौम है ये पूरी कौम में सी तेरी ये कुपरी चलना की आयतें कई नाजिल होती है क्या तेरे से हबी मालदारा है हमें हमारे ऊपर कहीं नाजिल होना नहीं हमने कहीं को बताना नहीं है पूरे वो बोल को पूछने लगा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बोलते ये तो मुझे मालूम नहीं मेरा अल्लाह मुझे चुन लिया मुझे हिदायत देखो सीधा रास्ते पे चला को मुझे अल्लाह ताला हिदायत देखो मुझे चुन लिया मुझे पैगंबर बनाया मुझे रसूल बनाया तुम्हारे बारे में मुझे मालूम नहीं को बोल को बोलते हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अब ये लगा ऊंटनी का मुतालबा करे अब ये ऊंटनी को भी शर्ता लगाए जरे शर्ता डायरेक्ट ये बोलना भी नहीं शर्ता लगाए एक जना बोलता कि 10 महीने अमल सिर है सो ऊंटनी आना को बोल के एक जना बोलता अब एक जना बोलता कि
सुर्ख रंग वाली ऊंटनी आना, सुर्ख रंग है तो रेड कलर वाली ऊंटनी आना को बोल के हबीब जना बोलता। हबीब जना बोलता कि वो ऊंटनी मोटी रहना, बहुत ताकतवर होकर रहना को बोल के बोलता। हबीब जना बोलता कि उसके ऊपर बाला ज्यादा रहना को बोल के हबीब जना बोलता। हबीब जना बोलता कि ये बहुत ऊंची भी रहना, ताकतवर भी रहना, इससे पहले हमें वैसी ऊंटनी कभी नहीं देखो रहना जी, वैसा ऊंटनी ले लगा आना तुम्हें को बोल को बोलती है ना। असल ऊंटनी ले लगा आना बड़ा गनीमत कर ले तो शर्ता लगाते हैं फिर ऊपर सी ऐसा ऐसा को बोल को। हमें यह बोलता कि वो ऊंटनी एक ही दिन में पूरा हमारे कुएं का पानी पूरा एक ही बार उन्हें पी डालना। एक रोज उन पीना, हमें रोज हमें पिए ना धना, वो वत्ता पानी पी लेना एक ही बार को बोल को हमें जाना बोले। ये पूरे लगा के कंडीशन सा, ये कंडीशनर के ऊपर तुम्हें हमें बोले ना दे ऊंटनी निकालने का है तो हमारे कंडीशनर के ऊपर है, हमें जब तुम्हारे ऊपर ईमान लाते को बोल को बोलते। अच्छा मैं निशानी लाए तो फिर तुम्हें क्या ईमान लाते ना को बोल को पूछते साले अलैहिस्सलाम। हाँ अच्छा हमें ईमान लाते को बोल को बोलते। वो लगा वो कौम में 9 सरदारा है, वो 9 सरदारा भी लगा ऐसा बोले से पूरे। अब अल्लाह से दुआ करते हजरत साले अलैहिस्सलाम ये लगा के मुतालबे बता को ऐसा ऐसा को बोल को दुआ करते अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह ताला अपनी ताकत से अपनी कुदरत से अल्लाह ताला वो लगा कैसा है तो बोले की निशानियां वैसा जो लगा कि हनके सामने जलजला आता, earthquake आता, जलजला आता, जलजला को पहाड़ हलने लगता, पहाड़ हलने लग जाते लगा कि हनके सामने से जलजला को नीचे से पहाड़ हल जाते भी पहाड़ के बीच में से पहाड़ फट जाता, 2 हिस्से में फट जा को पहाड़ है वो बीच में से ऊंट नहीं आती बाहर को। इतना बड़ा मौजूदा अपने आंखों से देखते हैं लगा, हंके से दिखते हैं लगा, इतना बड़ा मौजूदा अल्लाह का। बिल्कुल ऊंटनी मामूल से ऊंटनी भी नहीं, ये लगा क्या क्या है तो कंडीशनर है कि हर एक कंडीशनर के ऊपर है ये ऊंटनी। 10 महीने अमल से रहना, 10 महीने प्रेगनेंसी है वो ऊंटनी, बाला ज्यादा है, बहुत ऊंची और ताकतवर, मोटी ताजी, कलर रेड कलर ऊंटनी ये लगा बोले ना दे, ये लगा बोले से पूरे शर्ता के ऊपर है अल्लाह ताला वैसा की ऊंटनी भिजाया अपनी कुदरत से। अब ये देखे ना जी, देखने के बाद ईमान लाना ना, नहीं लाए ईमान है, बहुत कम लोग ईमान लाए। ये देखने के बावजूद इतनी बड़ी निशानी अल्लाह ताला की, इतना बड़ा मौजूदा देखे, देखने के बावजूद भी ईमान नहीं लाए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर, बहुत कम लोग ईमान लाए। अब ऊंटनी तो आ गई, इसके थोड़े हुकूक है, इसके वो हुकूक रखना तुम्हें लगा को बोल को कंडीशंस रखता अल्लाह भी एक तरफ है। क्या वो कंडीशंस है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बोलते तुम्हें बोले ना ऊंटनी आ गई लेकिन इसके भी थोड़े हक्का है, हुकूका है। वो क्या होगा के तो ये ऊंटनी को तुम्हें आजाद छोड़ा, इसकी मर्जी, किधर चाहिए तो भी चले जाती उन्हें, इसे क्या भी करे जानी तुम्हें लगा, इसे किसी तरह का मुसीबत या तकलीफ नहीं पहुंचाना तुम्हें लगा। दूसरी बात है तुम्हें बोले ना आदि ऊंटनी एक रोज पानी पीती, दूसरे रोज तुम्हें पीना, वो रोज माने तुम्हें नहीं पी सकते पानी, ऊंटनी पिए उस टेम्पो, दूसरे रोज तुम्हें लगा पी लेना, वो लगा बोले ना कंडीशन है। अब वैसे बोलते हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अगर तुम लोगा इसे तकलीफ पहुंचाए तो, मुसीबत दिए तो, ये ऊंटनी को क्या तो करे तो फौरन तुम्हारे ऊपर अल्लाह की अजाब आ जाता, तुम ना वो अजाब से कौन भी बचा नहीं सकता को बोल को सालेह अलैहिस्सलाम बोल डालते। अब ये ऊंटनी इन के हंके सामने फिरती रहती। अब ये ऊंटनी पूरा कुएं का पानी एक ही बार पी लेती सोची, वो लगा कि जानवरों को भी पानी नहीं मिलता, ये लगा को भी पानी नहीं मिलता। सेकंड रोज है, दूसरा रोज आप ये लगा पानी पी लेना, ये लगा के जानवरों को पानी पिलाना, वो रोज मानी नहीं मिलता, कोस रोज है तो ऊंटनी पानी पी की। अब ये लगा फिर को ये 9 सरदारा है, कौम समूद में 9 सरदारा रहते, 9 लीडर भी अब एक जगह जमा होकर प्लान डालते, प्लानिंग करते, क्या को हमें ऐसा छोड़ रहा है तो सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर लोग हबीज ज्यादा ईमान लाते, हम ना छोड़ डालते लगा, उसे पकड़ लेते, हम ना छोड़ डाल के लगा, हमें ऐसा हुई नहीं नको। अब ये ऊंटनी भी देखो कितना परेशानी करती है कि हम ना वो पी करते तो हम ना दूसरा रोज तक हम ना हमारे जानवरों को पानी नहीं मिलता है। बिल्कुल वो ऊंटनी को देखो हमारे बकरे डर को चल जाते हैं, हमारे जानवर डर को चल जाते हैं ऊंटनी की वजह से, ये ऊंटनी बहुत परेशान करती है, हम ना ऐसा नहीं इसे हमें कत्ल कर डालेंगे को बोल को ये लगा प्लान डालते। वो भी कैसा मालूम,
कौन तो एक जना तो दोनों तो करे कर लो, बाकी कबीले वाले हैं ना, बाकी कबीले वाले क्या बोलते हैं, उसको ऊपर डालते, तू इनिच करा को बोल के बोल डालते। होने से लगा होशियार सी काम लिए, क्या करे मानो, ये 9 सरदार अभी 9 कबीले वाले जी, एक एक कबीले को एक एक सरदार है, वैसा ये लगा 9 कबीले के 9 सरदार, ये 9 सरदार अभी जमा हो को वादा कर ले एक से एक, क्या को हमें सब भी मिलकर एक काम करेंगे, ऊंटनी को कत्ल करेंगे। लेकिन हमें लगा बाहर किसे भी बोलेंगे ना को, हमें करे को बोल को, ये हमारा वादा, हमें मिलको करेंगे, ये प्लान को बोल के लगा मिलको प्लान डालते ये ऊंटनी को कत्ल करने का। अब प्लान डाले तो ऊंटनी रोजाना ऊपर से पहाड़ के ऊपर से उतर को पानी पी लेती, किधर फिर ना गए तो फिरती, फिर को चले जाती बाहर। ये लगा कि हम क्या सामने चाहिए, दरमियान में ऊंटनी जन्म दी, बच्चा को जन्म डाली, उस 10 महीने का अमल सी है सो ऊंटनी होना को बोल के पूछे नहीं लगा। ऊंटनी तकरीबन 13 महीने प्रेग्नेंट होने रहती, 13 महीने अमल सी रहती ऊंटनी। ये लगा कि हम क्या सामने 10 महीने का आ गया, बाकी 3 महीने के बाद ये ऊंटनी वैसा छे बच्चे को जन्म डालती जी। सेम है वो ऊंटनी कैसी है कि वैसा जो उसका बच्चा भी हुआ। वो ऊंटनी को अल्लाह ताला नाकतुल्लाह बोला, कहते क्या ये अल्लाह की ऊंटनी, ये ऊंटनी को सा ऊंटनी भी जन्म नहीं दिया ना, होने से अल्लाह की ऊंटनी को बोलकर अल्लाह बोला, नाकतुल्लाह को बोल को। अब वो ऊंटनी जन्म दी बच्चे को, अब ये लगा इधर प्लान डाले मरने मारने के वास्ते। एक बार इसका बच्चा, ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी से अलग हो गया, अलग हो जाको वो ऊंट आता है तो ये लगा मिल को एक जगह छुप जाको, डरते पहले देखते देखे तो इसको कैसे कत्ल करेंगे, वो सामने जाते हैं तो डर जाते लगा। वो ऊंटनी बहुत गुस्से वाली, वो गुस्से को देख लगा डर जाते। उसमें से ये बदबख्त है, उसका नाम है किदार इब्ने सलीफ, एक रिवायत में है, एक रिवायत में है कि कदर इब्ने सलीफ है। ये बदबख्त है, वो 9 जना में सी उस टाइम पर इन लीडर रहा ये काम करने में, वो ऊंटनी को कत्ल करने में, मरने मारने में ऊंटनी को। ये बदबख्त क्या करे मालूम, वो लगा के डरते हैं को बोल को हंस को, वो लगा के ऊपर है, वो लगा को ठेल डाल को, तो मैं लगा टिकोरे को बोल को तीर निकाल को पान के ऊपर तीर मार डालता, वो करेक्ट हड्डी को जाको लगता, ऊंटनी के पान की हड्डी को जाको लगता, वो ऊंटनी गिर जाती। जब जल्दी जल्दी लगा पूरे जाको वो ऊंटनी को कत्ल कर डालते, मने मार डालते ऊंटनी को। उसके बाद उसका बच्चा है, वो बच्चे को भी छोड़ देंगे दलिंद्रा, वो बच्चे करने को भी जाको वो छोटा बच्चे को भी कत्ल कर डालते, मने मार डालते। अब इसके बाद हजरत ये लगा क्या करते हैं, कत्ल करने के बाद वो ऊंटनी का गोश्त जमा कर को पार्टी कर लेते रहते, लगा पूरे लोग जमा होकर वो गोश्त को पका ले को खाते रहते, पार्टी कर लेते रहते लगा। असल अल्लाह लगा को बोला ये ऊंटनी को तकलीफ पहुंचाई जानी, तकलीफ पहुंचाए तो तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाता, ये मेरी ऊंटनी को बोलकर अल्लाह खुद बोला, नाकतुल्लाह, कहते क्या अल्लाह की ऊंटनी को बोलकर अल्लाह खुद बोला। अब इसे क्या भी तकलीफ दिए जाने सकते तो मरने मार डाले, उसका बच्चे को भी मरने मार डाले, वो गोश्त काट ले को पार्टी कर लेते हैं लगा बैठ को एक जगह। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ ऊंटनी को ऐसा लगा कत्ल कर डालेगा बोल को, जल्दी जल्दी दौड़ते आए सालेह अलैहिस्सलाम भी, और उनके ऊपर ईमान लाए सो थोड़े लोग दौड़ते आपको देखते तो वो ऊंटनी मर जाको है, वो ऊंटनी का बच्चा भी मर जाको है, दो भी मर जाको है। बाद में सामने जाको देखे तो वो गोश्त है ये लगा खाते हैं, बिल्कुल पका ले को खाते हैं, पार्टी कर लेते हैं वो गोश्त से। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ जाता है, देखो मैं तुमने लगा को बोल रहा हूं ना इसे क्या भी तकलीफ पहुंचाई जानी को बोल को, तुम्हें लगा कत्ल कर रहा हो तो ऊपर से पार्टी भी कर लेते हैं क्या तुम्हें लगा। अब देखो अल्लाह के अजाब मजा चको, अब अल्लाह की अजाब का मजाक चको तुम्हें, अबे तुमने मालूम होता वो मजा क्या हो की, अल्लाह का अजाब का मजा क्या हो की को बोल को। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बोलते क्या को 3 दिन तुम्हारा मोहलत है, 3 दिन तुम्हें कहीं सा भी तुम्हारी जिंदगी गुजार लो, कितना रॉयल होने गुजारते की, कितना ईशो तुम्हें गुजारते की गुजार लो तुम्हारी जिंदगी, 3 दिन ही छवि तुम्हारा टाइम है सो 3 दिन के बाद अल्लाह ताला की अजाब तुम्हारे ऊपर आता, तुम्हें पूरे तबाह बर्बाद हो जाते, तुम्हारी कौम पूरी अल्लाह खत्म कर डालता, दुनिया से मिटा डालता को बोलकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बोलते। ये 3 दिन में निशानियां बोलते, ये पहला दिन तुमने लगा को तुम्हारा चेहरा पीला हो जाता, येलो हो जाता तुम्हारा चेहरा, दूसरा दिन में सुर्ख हो जाता, रेड हो जाता तुम्हारा चेहरा, तीसरा दिन ब्लैक काला हो जाता तुम्हारा चेहरा को बोलकर निशानियां बोलते। ये 3 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर अभी अजाब आ जाता को बोलकर सालेह अलैहिस्सलाम बोलाते। 3 दिन ही छवि तुम्हारा टाइम है सो कितना मजे उड़ाते कि उड़ा लो, मजे उड़ा लो तुम्हें लगा। 3 दिन के बाद फौरन तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाता को बोलकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बोलते, बोल का अब्बासी निकल जाते। निकल जाने के बाद ये लगा फिर को प्लान डालते क्या को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी वो लगा कि घर वालों को भी मरने मार डालना हबी को बोल को।
वो लगा इतना करको भी फिर को देखो, नबी को एक रसूल को मरने मारने के वास्ते प्लान डालते हैं, ये लगा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को, वो लगा कि घर वाले को। अब ये लगा प्लान डाल को, सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ के ऊपर था, ये लगा नीचे। अब नीचे से ऊपर जाते रहते, जब अल्लाह की कुदरत देखो, पहाड़ के ऊपर से बहुत बड़ा मोटा पत्थर आ जाको, वो लगा को फिसल जाता, दबा डालता वो पत्थर। ये लगा 9 जना को भी, 9 जनों सरदार प्लान डाल को उल्टी को मने मारे, इधर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मने मारने को वास्ते प्लान डाले ना, ये 9 जना को भी कुचल डालता है पत्थर, बड़ा पत्थर आपको कुचल डालता है। ये लगा 9 जनों भी ऑन द स्पॉट वाच मर जाते, ये लगा। अब इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम में 3 दिन टाइम है ना, अब 3 दिन टाइम में इन्हें चल जाना कहीं के, तो कौन है तो ईमान लाई की, वो लगा को नबी को क्या भी नहीं होता, अल्लाह वो लगा को ऊपर अजाब देता नहीं। अब वो लगा यार कौम को छोड़ डाल को निकल जाना, बाहर चले जाना ये लोग। अब इन्हों यहाँ से निकल जाको फलस्तीन चले जाती नो, पैलेस्टाइन उधर चले जाती नो, फलस्तीन इलाका छोड़ डाल को। अब ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कैसा है तो बोले कि वैसा चाहिए होना की निशानियां पूरी होती। पहला दिन दिखे तो इलाका का चेहरे पूरे पीले हो जाते, इलाका का येलो हो जाता है, इलाका का फेसा पूरे, इलाका के मुंह पूरे येलो हो जाते रहते, पीले हो जाते रहते। वो लगा अब पीले हो जाना देखे ना, तौबा करे जाना अल्लाह से, माफी मांगे जाना, माफी मांगे नहीं देखने के बाद। फिर को दूसरा दिन भी क्या करते, दूसरा दिन भी उन्होंने बोले ना नीचे उन्होंने का सुर्ख हो गया, रेड कलर हो गया फेस है। फिर को नहीं सुने, तौबा नहीं लाए, तौबा करे नहीं, ईमान लाई नहीं लगा। फिर को तीसरा दिन काला हो गया चेहरा, फिर भी ये लगा तौबा करे नहीं, ईमान लाई नहीं। जब पूरा अल्लाह दिया सो टाइम हो गया, इधर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है और इना के ऊपर ईमान लाए से ईमान वाले चले गए, ये बस्ती छोड़ को, इलाका छोड़ को चले गए। उस वक्त अल्लाह ताला अजाब भेजा। क्या वो अजाब है? जलजला आया, भूकंप आया, पहले भूकंप आया तो जलजला आया तो अर्थक्वेक आया, तो उसके वजह से वो लगा अपने घरों में से उल्टे मुंह पड़ गए। परिया को उठने को ये भी नहीं, बहुत बड़ा जलजला दिया अल्लाह ताला लगा को। वो लगा पहाड़ा को तराश को पहाड़ा में बहुत बड़े बड़े घरा बनाते सो, वो घरा में जब लगा तबाह बर्बाद हो जाते हैं लगा। अब इसके बाद इधर जलजला आया, इसके बाद अल्लाह ताला आसमान से एक आवाज भेजता, वो आवाज से ये लगा के कलीजे फट जाते, ये लगा के भेजे भी फट जाते, फट जाओ को वहां आवाज सब के सब मर जाओ को पड़ जाओ को रहते। एक बार सोचो, कलीजे फट जाओ को भेजे फट जाना करते तो सोचो, असल वो आवाज कितना ताकतवर होकर रहता, अल्लाह का अजाब है कितना ताकतवर होकर रहता। वो लगा को अल्लाह खुद बोलता है, कौम आद कौम समूद है बहुत ताकतवर वाले को बोल को खुद अल्लाह बोलता है, बनाया सुनीच बोलता है अल्लाह ताला, उतने बड़े ताकतवर कौम को अल्लाह ताला देखो आवाज के जरिए से तबाह बर्बाद कर जाला। वो आवाज कितना ज्यादा है कहते तो कितना ताकतवर है, तो आवाज ये लगा कि कलीजे भी फट गए, ये लगा कि भेजे भी फट गए। एक बार सोचो, भेजे फट जाना कलीजे फट जाना के तो कितनी बड़ी बात की। वही से अल्लाह ताला ये पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर डाला। थोड़े रिवायतों में आता है कि ये आवाज है आसमान से ऐसी आवाज है, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म दिया, आवाज दिए को बोल को, जोर होने छीको को बोल को, पुकारो को बोल को, फरिश्ते को आवाज दिया, वो फरिश्ते की आवाज को बोल को थोड़े मुफस्सिरीन बोले। बहरहाल ऐसा ये पूरी कौम को, कौम समूद को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर डाले, उनमें से ये जरा भी बच्चों नहीं आज। अब ये पूरा वाक्या अल्लाह ताला हमना सुना को बोलता है। अब तुम्हें सोचो, मैं इससे पहले इतने कौमों को तबाह बर्बाद कर डाला हूं, तुम ना करना मुझे क्या भी बड़ी बात नहीं को बोल को हमना लगा को समझाता है अल्लाह ताला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबासी जाते हैं तो वो इलाके के ऊपर से गए जी, कौम समूद के इलाके के ऊपर से गए। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले या टिकना न को कौन भी को बोल को, या अगर कौन तो टिके तो भी, या कौन भी हंसना न को, हंसे नहीं सरकार रोते रहो, नहीं रोना नहीं आए तो रोयनाद कर लो, तुम्हारा चेहरा रोयनाद कर लो जरा, लेकिन तुम्हें यह माने हंसे जानी कई को कहते तो अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आया लगा के पूरे को बोल को बोले। वो इलाके को बोलते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें लगे या हंसना न को या टिकना न को, अगर टिके तो भी या हंसे नहीं सरका रो डालो, तुम्हें रोना नहीं आए तो रोना आए ना तो तुम्हारा चेहरा कर लो, तुम्हारा फेस ऐसा कर लो बना लो, लेकिन यहाँ माने हंसो न को, मुझे डर है, तुम्हें लगे या हंसे तो तुम्हारे ऊपर है अल्लाह का अजाब ऐसा चाहता क्या की को बोल को, मुझे डर है तुम्हें हंसे जानिए सब मौके पे को बोल को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। एक बार ये लगा कि कुएं के दरमियान पड़ाव डाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा टिके, टेंट डाल को जरा टिके एक जगह, वो जगह में टिके तो जरा सहाबा क्या करेगा तो वो कुआ बावड़ी में से पानी ले लेका लेते, पानी ले लेका ले को पानी का इस्तेमाल करके खाना बनाते।
हमारे नबी को मालूम होता बाद में, वो लगा वो बावड़ी सी वो कुएं से ले लेकर पानी को बोलकर हमारे नबी फौरन बोलते ये पानी ले लेकर से पानी पूरा नीचे फेंक डालो, वो कौम समुद्र का पानी, वो पानी तुम्हें लगा बरतना नको, वो पानी बरत को तुम्हें क्या क्या है तो बनाए तो पूरे फेंक डालो बोल को बोलते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लगा बना डालते वहां को खाने को से लगा खाना पूरा, लेकिन वो पूरा खाने को उल्टे डाल डालो को बोलते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नको ये पानी सी बनाए सो कोसा भी नको हम ना फेंक डालो को बोल को फेंकने खुरमा डालते। अब ये पूरा वाक्य अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताता है हमना लगा को, ये वाक्य हमना कई को बताता है, सबक हासिल करो इसी को बोल को बताता है। कुरान में कितने है तो वाक्य वाला है कि वाक्य आता है कि ये पूरे से अल्लाह ताला हमना समझाता है, मेरी बात समझे तो मैं लगा पिछले तुम्हारे से पहले ऐसे कोमा मेरी बात नहीं माने तो मैं वो लगा को तबाह बर्बाद कर डालो, तुम्हारे ऊपर भी ऐसा अजाब आता, तुम्हें लगा मेरी अजाब से डरो को बोल को समझाता है अल्लाह ताला। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैं अल्लाह से दुआ करो क्या को बोल को, इससे पहले अल्लाह पूरी कौमों को ऐसा तबाह बर्बाद कर डालता सो, एक जने को भी बचा को नहीं छोड़ता सो, एक जना भी नहीं बचा, सब जना को कौन है तो नाफरमाना रहे तो सबको बने मारा डालता, वो लगा को निस्तो नाबूद कर डालता, मिटा डालता वो लगा का, असल वो लगा का नाम और निशान भी नहीं रहता। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करे क्या को बोल को, या अल्लाह मेरी उम्मत को एक ही दम तू खत्म करना नको, पिछले तू हर एक बार भी सब जना को खत्म करवाते रहे एक ही बार, लेकिन मेरी कौम को मेरी उम्मत को माने तू हरगिज एक ही बार खत्म करना नको मेरी उम्मत को बोल को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो को दुआ करे अल्लाह से। उसके वजह से चे आज हमें बच को है जी, नहीं तो पिछले कौमा कहते हैं तो बड़े बड़े कौमा है कि पिछले कौमा उनसे ज्यादा गुना आज ये उम्मत करती है, लेकिन फिर भी अजाब कहीं को नहीं आता है। कहता हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना धोना, उन्होंने रोए अल्लाह से, रो रो को दुआ मांगे अल्लाह एक ही दम मेरी कौम को मेरी उम्मत को खत्म मत कर अल्लाह तू को बोल के दुआ मांगे, उनके वजह से आज हमें बचको है। ये वाकयात से हमें सबक हासिल करना, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना, उसके साथ शिर्क नहीं करना, हमें बुतों के सामने नहीं झुकना, बुतों की पूजा नहीं करना। अल्लाह हमना इतने बड़े निशानियां बताया, कुरान हमना कितनी बड़ी निशानी कुरान है, ये कुरान में पूरे वाकयात बताता है अल्लाह ताला, ये पूरे ऐसा हुए को बोल को हमना समझाता है, तुम्हें मानो मेरी बात है, मेरी बात नहीं माने तो अच्छा। हमारे नबी की दुआ है एक ही दम हमें खत्म नहीं होते, लेकिन अजाब तो है ना मरने के बाद, मरने के बाद कब्र की अजाब है, असल अजाब है, फिर को आखिरत की अजाब है, हमने उठाता फिर को, फिर वो दो अजाबा है ना, उससे कैसे बच सकते हैं हमें, हमने समझाता है, समझो मौत से पहले पहले समझो मेरी बात को बोल अल्लाह हमने समझाता है। ये पूरा कुरान में क्या की स्टोरी के नादर है नहीं, हमने सबक हासिल करने के वास्ते, हमें ये सुन को हमें सीधे रास्ते पे चलने के वास्ते, अल्लाह की नाफरमानी से बचने के वास्ते, अल्लाह की फरमा बरदारी करने के वास्ते, कुरान के मुताबिक और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के वास्ते पूरा अल्लाह ताला हमने बोलता है सो समझाता है सो। मैं ऐसा तबाह बर्बाद कर डालू तुमने लगा को करने के वास्ते मुझे टाइम नहीं लगता, क्या अभी तुम्हें समझो मेरी बात को बोल को हमना समझाता है। अब हमें समझना भाई, हमें अमल करना, हमना कुरान है कितना बड़ा मौजूदा जी, हमना हमारा कुरान है बहुत बड़ी किताब है, आसमान की 4 किताबें है, उनमें सबसे बड़ी किताब हमारे कुरान मजीद है। ये कयामत तक वैसा रहा था, कब है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ कि जब से लेकर कयामत तक के सेम टू सेम रहता, इसे कौन भी बदला सकता नहीं। इतनी बड़ी निशानी हमारे सामने है और कई निशानियां अल्लाह ताला हमारे सामने रखा, फिर भी हमें हमारे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। 5 वक्त की नमाज फर्ज करा, 5 मिनट लगती है एक नमाज को, लेकिन हमें अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। दिन में रात में ना जाने कितने कितने गुनहगार को भेजते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से तौबा नहीं करते हैं। अगर हमें तौबा नहीं करे तो हमें ऐसा को बोलकर रहे तो अल्लाह का बहुत बड़ा सख्त अजाब हमारे सामने है, हमारे वास्ते वेट करता है वो अजाब है। वो अजाब से बचने के वास्ते हमें तौबा कर लेना, तौबा कर को हमें ये पूरे वाकयात से सबक हासिल कर को अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करना। अल्लाह कैसा बोले कि वैसा कुरान के मुताबिक हमें हमारी जिंदगी गुजारेंगे ना भाई। अल्लाह ताला हम सबको कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।